Good morning, students of class 9th. Today I am going to teach you English literature 8th poem. Okay, on killing a tree. This poem has been composed by Guy Patel. Okay, about the poet. Guy Patel was born in Mumbai in 1940. His parents belonged to a small village in Gujarat. He got his education at St. Xavier High School and Grant Medical College, Mumbai. He lives in Mumbai and and general practices as a general physician. Besides being a medical doctor, he is poet, playwright, and painter. He also works for the protection of environment. His poems speak of deep concerns for nature and strongly opposes man's cruelty to it. His works include How Do You Withstand Body, Title Princess, Shokesha, Shaksh, etc. He has also worked for art. About the poem, trees are our lifeline. We can't exist without trees. Okay, they are living beings. We should therefore not kill them. Trees are not only holy but also valuable. We should therefore make every effort to protect them. They have equal right to live as men. Okay, you must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? Is it easy to do so? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. Okay, it takes much time to kill a tree. Not a simple zap of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its lepers hide sprouting leaves. यानी कवि कहते हैं कि यदि हम एक वृक्ष को मारना चाहते हैं तो उसमें बहुत अधिक समय लग जाता है। साधारण चाकू के द्वारा किए गए केवल एक कटाव से वृक्ष मर नहीं सकता है। वृक्ष धरती से भोजन और अन्य पोषक तत्व प्राप्त करके बड़ा होता है। वह सूर्य के प्रकाश, हवा और जल को वर्षों तक चूसता रहता है और बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। यदि हम इसे काटने या फाड़ने का प्रयास करते हैं तो इससे अधिक पीड़ा नहीं होती है। इसको अधिक पीड़ा नहीं होती है। इसकी रक्त बहती हुई त्वचा जल्दी ही ठीक हो जाती है। इससे छोटी छोटी टहनियाँ फूट पड़ती हैं। शीघ्र ही वे बहुत बड़ी शक्तियाँ हो जाती हैं। ओके, और कवि कहते हैं कि वृक्ष की असली ताकत उसकी जड़ों में होती है। यदि हम वृक्ष को हमेशा के लिए मारना चाहते हैं तो उसकी जड़ों को पूर्ण रूप से बाहर निकाल लिया जाना चाहिए। उन्हें खुले में छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वे धूप में मुरझा जाएं और हवा के कारण उनका दम घुट जाए। इस प्रकार से आकार और रंग बदलने की एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात हम कह सकते हैं कि वृक्ष मर गया है। ओके, It takes much time to kill a tree. Not a simple zap of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out its lepers hide, sprouting leaves. ओके, यानी कवि कहते हैं किसी वृक्ष की हत्या करने अर्थात काटने में बहुत समय लगता है। चाकू के साधारण आघात से यह नहीं होगा। यह उगा है धीरे धीरे धरती का उपभोग करते हुए, इससे मिट्टी से बाहर निकलते हुए, भूपटल से पोषण लेते हुए, वर्षों तक सूर्य के प्रकाश, हवा, पानी का अवशोषण करते हुए,
अपनी कुष्ठाग्रस्त छाल से कोपने निकालते हुए, ओके, यानी फिर से पेड़ को काटते हैं तो छोटे छोटे फिर दोबारा ऊपर जाते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टैंजा, so hack and the chop, but this alone won't do it, not so much pain will do it, okay. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, okay, miniature balls, which if unchecked will expand again to former size. In this stanza, poet says, इसलिए इसे अभद्रता पूर्वक और बलपूर्वक बारंबार मत काटो, यानी पेड़ों को मत काटो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इतनी पीड़ा से काम नहीं चलेगा, रक्त स्रावित छाल के घाव भर जाएंगे। यानी बबूल का पेड़ जब काटते हैं हम तो उसमें से गोंद निकलता है, इसका मतलब पेड़ रो रहा है ना, लगता है जैसे कि पेड़ रो रहा है, लेकिन असल में वो उसका घाव में से, ओके, और रक्त स्रावित छाल के घाव भर जाएंगे और भूमि के निकट से लहरदार हरी टहनियाँ, छोटी शाखाएं आएंगी, यदि इनको रोका ना गया तो पुनः पूर्व आकार तक फैल जाएंगी, ओके। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cape, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. In this stanza, poet says, नहीं, जड़ को उखाड़ना पड़ेगा, ओके, जड़ को उखाड़ना पड़ेगा, जकड़ने वाली मिट्टी से बाहर इसे रस्सी डालना और बांधना होगा और खींचना होगा, झटके से काटकर बाहर निकालना होगा या फिर पूरी तरह बाहर खींचना होगा। भूगुहा से वृक्ष की शक्ति का पता चल जाएगा, ओके, जो कि वह स्रोत यानी जड़ है, ओके, जो सफेद और गीला अत्यधिक संवेदनशील है, धरती के भीतर वर्षों से छिपा है। देन द मैटर ऑफ स्कोचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्रोनिंग एंड हार्डनिंग, ट्विस्टिंग विदरिंग, एंड देन इट इज डन, ओके। तब उखाड़ने और धूप व हवा में झुलसा व दम घोंटकर सुखाने की बात होती है, भूरा पड़ना, कठोर होना, मुड़ना, सूखना, और तब यह प्रक्रिया प्रोसेस अर्थात पेड़ के मर जाने की पूर्ण हो जाती है, यानी पेड़ मुरझा जाता है, मर जाता है, ओके। इज दैट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड माय क्लास। सिमिलरली, you have to do all the questions and exercise. All the best.